ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओम शांति सौरभ भाई। वेलकम। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति जी। शांति सौरभ भाई। शांति सौरभ भाई। ओम शांति सौरभ भाई, गुड इवनिंग। अच्छा, तो हम देख रहे हैं समय के बारे में। हम 2 मिनट फिर से इस क्लैरिटी में आकर स्टार्ट करते हैं कि जो हमने कहानी सुनी, सालिग्रामों की कहानी, वॉयेजर्स, यात्रियों की कहानी, जो इस फिजिकल दुनिया में यात्रा करने आए, वो कहानी रियली में हमारी कहानी है। हम ही वो सालिग्राम है, आत्माएं हैं, जो इस फिजिकल दुनिया से दूर अपने घर परम धाम में रहते हैं। वहां से ही हम इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आते हैं। हमने अनेक जन्म पाठ बजाए, कभी खुशी, कभी गम, कभी हार, कभी जीत, पर ये सब एक खेल, नाटक चल रहा है। और हम आत्माएं इस समय इस रियलाइजेशन में है कि the only thing that is permanent is I, the soul, and the divine Baba. बाकी हर चीज आती है और जाती है. Everything comes and goes. Nothing is permanent in this physical world. मैं आत्मा बस डिटैच्ड होकर इस नाटक को बस देख रही हूं. जब हम समय की बात कर रहे हैं और इस जर्नी को देख रहे हैं, तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने जो टाइम के बारे में बताया है, कैसे जो हम टाइम को जनरली अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं वर्सेस जो टाइम का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जहां पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब इकट्ठा है. The past, present and future exist all at once. बहुत सुंदर छोटा सा वीडियो है, हम देखते हैं. इसमें उन्होंने अच्छी तरह से ये पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया है. So it will help us understand कि कैसे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सके.
experiment was carried out in 1971 when scientists flew an atomic clock around the world and then compared it to one on the ground. As Einstein predicted, the two clocks no longer agreed. They differed by only a few hundred billionths of a second, but very real proof of motion's effect on the passage of time. Einstein's theory has been tested again and again and again, and it all hangs together. It really forms the basis for the way we understand much of the way nature works. These effects, which used to be considered sort of obscure and very small, are very in your face with today's technology. With the discovery of this unexpected link between space and time, Einstein realized that the two could no longer be thought of as separate things. Instead, space and time are fused together in what came to be called space-time. Einstein unified the idea of space with the idea of time into this four-dimensional structure called space-time. And this fusion of space and time would lead Einstein to perhaps the most mind-bending realization of all. The sharp difference we see between past, present, and future may only be an illusion. In our day-to-day lives, we experience time as a continuous flow. But it can also be useful to think of time as a series of snapshots or moments. And everything that happens can be thought of as the unfolding of moment after moment after moment. And if we picture all moments or snapshots lined up, every moment here on Earth, every moment of Earth orbiting the sun, and every moment throughout the entire universe, we would see every event that has ever happened or will ever happen. Every location in space and each and every moment in time. From the birth of our universe at the Big Bang some 14 billion years ago, to the formation of stars in the Milky Way galaxy, to the creation of Earth 4.5 billion years ago, to the time of the dinosaurs, to events happening on Earth today, like me working in my office. Thinking about space-time like this led Einstein to overturn our everyday picture of past, present, and future. To get a feel for this, you have to think about the seemingly simple concept of now. For me, a list of things that I consider to be happening right now might include the tick of noon on my office clock, my cat just now jumping from the windowsill, things happening far away, like a pigeon in Venice taking flight at this very moment, a meteor just now hitting the moon, and the explosion of a star at the far reaches of the universe. These and all other events that I think are happening at the same moment in time, but in different regions of our universe, make up what I intuitively think of as now. You can picture them as lying on a single slice of space-time. Let's call it a now slice. Common sense would say that you and I and everyone else will agree on what's happening or what exists right now, moment after moment after moment. That is, we would all agree on what lies on a given now slice. But Einstein showed that, strangely, when you take motion into account, this common sense picture of time goes out the window. You see what I mean? Think of space-time as a loaf of bread. Einstein realized that just as there are different ways to cut a loaf of bread into individual slices,
there are different ways to cut space-time into individual now slices. That is, because motion affects the passage of time, someone who's moving will have a different conception of what's happening right now. And so they'll cut the loaf into different now slices. Their slices will be at a different angle. That person who's moving will tilt the knife, will be carving out these slices at a different angle. They won't be parallel to my slices of time. To get a feel for the bizarre effect this can have, imagine an alien here in a galaxy 10 billion light years from Earth, and way over there on Earth, the guy at the gas station. Now, if the two are sitting still, not moving in relation to one another, their clocks tick off time at the same rate, and so they share the same now slices, which cut straight across the loaf. But watch what happens if the alien hops on his bike and rides directly away from Earth. Since motion slows the passage of time, their clocks will no longer tick off time at the same rate. And if their clocks no longer agree, their now slices will no longer agree either. The alien's now slice cuts through the loaf differently. It's angled toward the past. Since the alien is biking at a leisurely pace, his slice is angled to the past by only a minuscule amount. But across such a vast distance, that tiny angle results in a huge difference in time. So what the alien would find on his angled now slice, what he considers as happening right now on Earth, no longer includes our friend at the gas station or even 40 years earlier when our friend was a baby. Amazingly, the alien's now slice has swept back through 200 years of Earth history and now includes events that we consider part of the distant past, like Beethoven finishing the Fifth Symphony. Even at a relatively slow speed, we can have actually tremendous disagreements on our labeling of now, what happens at the same time, if we're spread out far enough in space. And if that's not strange enough, the direction you move makes a difference too. Watch what happens when the alien turns around and bikes toward Earth. The alien's new now slice is angled toward the future. And so it includes events that won't happen on Earth for 200 years. Perhaps our friend's great-great-great-granddaughter teleporting from Paris to New York. Once we know that your now can be what I consider the past, or your now can be what I consider the future, and your now is every bit as valid as my now, then we learn that the past must be real. The future must be real. They could be your now. That means past, present, future, all equally real. They all exist. If you believe the laws of physics, there's just as much reality to the future and the past as there is to the present moment. The past is not gone, and the future isn't non-existent. Past, the future, and the present are all existing in exactly the same way. Just as we think of all of space as being out there, we should think of all of time as being out there too. Everything that has ever happened or will happen, it all exists. From Leonardo da Vinci laying the final brushstroke on the Mona Lisa, to the signing of the Declaration of Independence, to your first day at school, to events that, from our perspective, are yet to happen, like the first humans landing on Mars. With this bold insight, Einstein shattered one of the most basic concepts of how we experience time. The distinction between past, present, and future, he once said, is only an illusion, however persistent. The scientific video, the main message जो इसमें यही था कि
जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया, रियलाइज किया कि जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ ही है, एक साथ ही है। जैसे एक शूटिंग चल रही है और एक एक फ्रेम बाय फ्रेम एवरीथिंग इज बीइंग शॉट। तो पास्ट है और फ्यूचर भी है। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में, ये जो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है और हमने जो कहानी में देखा, तो केवल इस एक नाव की नहीं, पर मुझ सालिग्राम या मुझ आत्मा की, जब से हम धरती पे आए तब से लेके सारी जो रिकॉर्डिंग है, तो इसको हम जब डिटैच्ड होकर देखते हैं, तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक ब्रेड का, कि ब्रेड को हम कहीं से भी काट सकते हैं तो हमें अलग अलग वो दिखाई देगा। तो नाउ स्लाइस विल बी डिफरेंट बिकॉज इट्स द स्पेस टाइम। फिर जो उन्होंने दिखाया कि पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए और जो फ्यूचर में जो भी होने वाले हैं, इट ऑल एग्जिस्ट्स टुगेदर। सो विद दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया, ये समझ आती है कि रियलिटी में ये एक बेहद का ड्रामा है जो हमारे सामने अभी चल रहा है। ये पहले भी हो चुका था, अभी भी हो रहा है और फिर भी होएगा। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो पक्षी उड़ा तो पहले भी उड़ा था और बाद में भी उड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं, पहले भी बात कर रहे थे, बाद में भी बात करेंगे। It's all being shot in the drama of life. और जो परमात्मा है या शिवा है, जो हमने कहानी में देखा है कि he knew the innermost secrets of time itself. तो उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग है कि पूरी सृष्टि क्या है। और जब भी हम मुरलियों में भी सुनते हैं, तो कई बार बाबा पास्ट की बातें बताएंगे, हम देवता थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे बनने वाले हैं। यानी बाबा के माइंड में, फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव, गॉड इज सीइंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टुगेदर। साथ में वो देख पा रहे हैं क्योंकि वो इस ड्रामा से परे हैं। तो इस रियलाइजेशन से, इस अवेयरनेस से, जस्ट गेट दिस बिगर पिक्चर। Then we realize कि जो भी अभी है वो पहले भी हुआ था और आगे भी होने वाला है। और रियलिटी है ये कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं और यहाँ पे हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, तो परमात्मा कहते हैं कि ये जैसे पूरी कहानी है, बनी हुई है, जो हमने देखा, जो रिपीट होती है। आत्मा आई, धरती पर आई, सत्युग हुआ, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, फिर संगम, फिर वापस घर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर से वही होता है। तो सारे जो इवेंट्स हैं, ये सारी बातें जो एक ड्रामा के रूप में रिकॉर्डेड है और जो अभी फिर से रिपीट हो रही है। तो ये अराउंड 5000 ईयर्स का ये पूरी कहानी है जो ये चल रही है। हर युग 1250 वर्षों का है, कॉन्फ्लुएंस एज करीबन 100 वर्षों का है। और हम आत्माएं अलग अलग जन्म लेते हैं। तो कुछ आत्माएं सतयुग से लेके आते हैं, कुछ फिर बाद में भी आते हैं। तो लेकिन हर एक एक्टर का अपने समय पर ये पार्ट फिक्स्ड है। तो जब भी हम कहते हैं योग में, जैसे द मोमेंट आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दिस जस्ट इल्यूजन की यही रियलिटी है जो मेरे साथ अभी हो रहा है, हम जनरली उसी में जीते हैं। कभी कोई व्यर्थ संकल्प या थॉट्स भी आते तो उन्हीं को हम रियल समझकर अपना स्टेट ऑफ माइंड खो देते हैं। तो जब ये पिक्चर समझ आती है कि नहीं, ये बेहद का ड्रामा है और एक पूरे ड्रामा किसी में छोटा सा ही सीन भी चल रहा है,
और जैसे परमात्मा इस ड्रामा से परे होकर इस ड्रामा को देखते हैं, इस पूरे जैसे एक पूरा एक कहे तो एक ब्रेड कहे या पूरा उसका एक सर्कल कहे जो कि रिपीट होता जा रहा है, उसका नाम बिगनिंग है, नाम एंड है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो ये समझ, ये परमात्मा भी हम आत्माओं को दे रहे हैं कि अपने आप को रियलिटी में ये एक्टर समझना। और जैसे ये जब इवेंट्स की बात आती है तो ज्योग्राफी की भी बात आती है, तो अर्थ की ज्योग्राफी भी रिपीट होती है। और अलग अलग धर्मों में भी यही बात आती है कि करीबन कल्प जो है, कल्प यानी कि पूरी जो कहानी है, इसकी ड्यूरेशन 5000 वर्ष है। तो जो भी फ्यूचर भी है, तो इस अंडरस्टैंडिंग से हमें क्लैरिटी आती है जो फ्यूचर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है और कई बार हो चुका है। हम बस उसको रिपीट कर रहे हैं। इसको कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। जो हुआ वो होने वाला है, पहले भी हो चुका है, ऐसे नहीं कि पहली बार ही हुआ है। अभी जैसे कोई मूवी है, अगर हम पहली बार देखते हैं तो हमें थोड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, पर अगर वही मूवी को हम बार बार देखते हैं तो वी नो आगे क्या आने वाला है। So then we're automatically detached from the emotion of that. वैसे हम आत्माएं भी, जैसे जब हमें रियलाइजेशन है कि जो भी होने वाला है पहले भी हुआ था और आगे भी होगा, so then जो लाइफ की छोटी छोटी बातें होती हैं, we can easily come out of it. कभी मन उदास होता है, कभी ऊपर नीचे, we can easily just bring ourselves out from it. इसी को कई बार हम सुनते हैं शब्द स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन यानी खुद का दर्शन। तो ऐसे तो स्वदर्शन में आत्मा हो, लेकिन फिर अपने पूरे इस कहानी का दर्शन। तो जब ये रियलाइज होता है कि जो हम आत्माएं आए थे सतयुग में, जिन्हें देवी देवता के नाम से अभी याद करते, एक्चुअली हम ही थे, हम ही थे। जैसे हमें ये क्लैरिटी है कि जब हम 10 साल के थे या 20 साल के थे, तो हमें एकदम क्लैरिटी है कि वो हमारी लाइफ है। तो वैसे ही परमात्मा बताते कि जो देवी देवता थे वे हमारी ही लाइफ थी, किसी और की हमारी ही लाइफ थी। It is very real, and we can just, the moment we slice there, we can feel it. Yes, that's who I was. और आगे भी, क्योंकि ये साइकिल है, तो बनने हम वही वाले हैं। तो ये हमारी रियलिटी है। तो सोल कॉन्शियस होना, ये हम पहले भी हुए थे, अभी भी हो रहे हैं, बाद में भी होंगे। और ऐसी अर्थ का भी जो हम देखते हैं कि जो अर्थ की भी जो मोशन अराउंड द सन है, the other day we were watching this amazing 3D perspective कि ज्योग्राफी जो है अर्थ की, तो हम देखते हैं कि ऐसे तो हम देखते हैं अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऑर्बिट, फिर हम दूसरा मोशन देखते हैं कि अराउंड द सन। तो ये है एक दिन 24 आवर्स और ये है एक साल। पर उसमें बहुत सुंदर ऐसा बताया कि जैसे सन का साइज बहुत बड़ा है और अर्थ बहुत छोटी सी है, तो अगर हम देखें बहुत बड़ी बॉल है, अर्थ छोटी सी है, तो एक ऑर्बिट जब लेती है तो सन का बहुत ही छोटा सा वो एरिया ही कवर कर पाती है। तो अर्थ का जो ऑर्बिट है
that orbit also moves. और साइंस में ये भी बात आती है कि जो ये ऑर्बिट एक ऐसा है, फिर थोड़ा टिल्ट होगा, फिर टिल्ट होगा, फिर टिल्ट होगा, and the earth takes around 5,000 years to complete one full revolution. This is the third axis around the sun. तो जो अर्थ की भी जो मोशन है और जो भी क्लाइमेट साइकिल्स हैं, दिन और रात है, और जो भी हम वेदर पैटर्न्स देख रहे हैं, ये सब भी उसी से लिंक्ड है, that motion of the earth around the sun. उसकी ड्यूरेशन भी 5,000 years है. तो जैसे जो नाटक यानी अर्थ जो स्टेज है, ये भी रेडी हो जाती है जब हम नई दुनिया में सतयुग में आते हैं. Then the earth has a process through which it rejuvenates. और हम जो अभी देख रहे हैं, जो भी दुनिया की हालतें हैं, वो सब भी इस रिजुविनेशन के प्रोसेस में मददगार है. चाहे नेचुरल कैलामिटीज कहें, चाहे न्यूक्लियर वॉर्स कहें, चाहे सिविल वॉर्स कहें, कुछ भी कहें. तो ये बहुत सुंदर ये ड्रामा बना हुआ है. तो कई बार इसको परमात्मा के शब्दों में कहते हैं कि बना बनाया ड्रामा है. जो ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है. पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, बाद में. So this is that unlimited perspective realization. So the history repeats, the geography repeats. और हम आत्माएं, हमारी ये पूरी कहानी भी रिपीट. तो इस अंडरस्टैंडिंग से हम लाइफ को एक खेल के रूप में, नाटक के रूप में देखकर एंजॉय कर सकते हैं कि सही में नाटक चल रहा है. इसलिए कई बार ना शब्द आते ड्रामा अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू द ड्रामा प्लान. ड्रामा में ये होना था. कई बार अचानक की चीजें आती हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. वो भी ड्रामा प्लान अनुसार. जब हम देख पाते ना पूरे ड्रामा को, यानी मैं आत्मा की मेरी पूरी कहानी है इन टोटल, शुरू से लेके यानी आदि मध्य अंत पूरी. तो फिर ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा या क्यों किया, या मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, संस्कार क्यों आ रहे हैं, कोई भी बात है. But we realize the overall journey of the soul. और कैसे ये समय जब हम अभी साथ में हैं, and we are all on the journey to reawaken ourselves. हम ये कर रहे हैं कि अपने आप को जागृत कर रहे हैं. कई बार संस्कृत में ये श्लोक आता है, हम सो हम. इसका यही अर्थ है, हम नहीं, मैं जो थी आत्मा, वही मैं अब फिर से वो अनुभव, जो मैं देवी देवता हम थे, अभी हम फिर से बन रहे हैं. तो मंदिरों में जिनकी हमने मूर्तियां बनाई और जिनकी हमने पूजा की, तो वो हमारा ही स्वरूप है. इसका अर्थ यह है कि अभी हमें वैसा, हम अभी परमात्मा की याद से और सोल कॉन्शियसनेस के अभ्यास से हम वैसा फिर से
बन रहे हैं, हम वही क्वालिटीज अपने अंदर फिर से इमर्ज कर रहे हैं। इसलिए कई बार मुरलियों में आता है कि बच्चे आप अपने जन्मों को नहीं जानते, बाबा आपको बताते हैं। बाबा इज टेलिंग अस कि हमारे क्या कितने जन्म कैसे कैसे हमने लिए और ये कैसे कहानी ये चली। परमात्मा ये भी बताते हैं कि फ्रॉम द बिकॉज the divine knows this entire story in totality. The divine also shares with us कि ये जो समय है अभी का जो समय है, ये पूरे साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट समय है जिसको हम संगम युग कहते हैं। And this is the time of the awakening. जो हम कहें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, जो 4 युग, उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट है अभी डायमंड एज, हीरा। This is the age of truth. Truth in the sense की the age of transformation का है, moving from false to truth. This is the age when we experience the complete truth. ये जो अंडरस्टैंडिंग है समय की, ये अभी हमें मिलती है। तो कल, आज और कल, तो ये जो पर्सपेक्टिव है कि हमें सब एक साथ देखने का, आज हम यही मेन पॉइंट लेते हैं कि ये पूरे समय को, इस पूरी कहानी को एक साथ हम देखें। ऑटोमेटिकली हर चीज को हम देख पाएंगे, फिर किसी भी सीन को देखकर हमें क्वेश्चन नहीं उठेगा ऐसा क्यों, क्या नहीं, because we are able to see the whole picture together. तो हम 2 मिनट इसको अनुभव करते हैं, अपनी इस कहानी को, और जो भी पास्ट में हुआ, अभी जो प्रेजेंट फ्यूचर, सबको एक साथ हम देख पा रहे हैं। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम वॉचिंग दिस एंटायर स्टोरी। कैसे मैं आत्मा परम धाम से आई, सारे रिकॉर्डेड है, ये ड्रामा है, ये पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, फिर भी होगा, और यही सत्य है, ये ड्रामा ही सत्य है। जो भी चीज इस ड्रामा में हुई है वो सत्य है, वही होनी चाहिए थी, और इसीलिए वही हो रही है। इसलिए मुझे उसके लिए कोई भी क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। Don't need to question it. It is drama, and it is कल्याणकारी, beneficial. मैं आत्मा परमधाम से, फिर सतयुग में, फिर पूरी हमने वो लाइफ बिताई। तो वो सीन्स को इमर्ज करें अपने सामने। इस पूरी कहानी को फिर से रिवाइज करें। जब हम अपने घर में थे, हम शालिग्राम के रूप में रहते थे शिव परमात्मा के साथ।
शिव जो सबसे कल्याणकारी, हम आत्माओं के पिता, परम पिता। और उन्होंने हमें फिर भेजा दूसरी दुनिया में। इस दुनिया को पृथ्वी कहते हैं। ये एक नाटक है, एक स्टेज है, रंगमंच है। यहाँ पर हम अवतरित हुए, हमने देखा कितना सुंदर नजारा, सत्युगी नजारा। हमने रोबोट सूट्स में पार्ट प्ले किया, हम एंटर किए, बहुत सुंदर जीवन बिताया। धीरे धीरे हमारी कलाएं भी कम होती गई, पर हम आत्माएं हैं, ये हमें कभी भूलता नहीं था। ये रियलाइजेशन थी। हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते थे। इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर अस टू डू दैट। फिर टर्निंग पॉइंट आया और हम आत्माएं खुद को भूलकर शरीर को ही देखने लगे और देह अभिमान में फंस गए। वहीं से सारे विकार आने लगे और जो दुनिया शांति की दुनिया थी वो अशांति की दुनिया हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स की दुनिया हो गई। एक कॉन्टिनेंट से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। फिर हमने भगवान को याद किया, शिवा को याद किया, तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे, इब्राहिम, क्राइस्ट, पैगंबर, बुद्ध, मोहम्मद। सभी ने हमें रास्ता दिखाया उस परम शक्ति की ओर। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम सोल कॉन्शियस नहीं बन पाए। हम मैसेंजर्स तक ही सीमित रह गए। बीच बीच में हमें रियलाइज होता था कि हम आत्माएं हैं जब शरीर छोड़ते थे, लेकिन फिर भी देह भान, देह अभिमान बहुत बढ़ता गया। अंत में साइंस की फिर डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई, पर आत्माएं शरीर से ही अपने आप को एसोसिएट करने लगी। यह है कलयुग का समय। फिर इस कहानी के अंत में स्वयं परमात्मा शिव बाबा साकार सृष्टि पर हम आत्माओं को जगाने के लिए आते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम कौन नहीं है। और फिर ये जो सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी जो एंड ऑफ द प्ले है, जहाँ की ये पूरी धरती ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस के थ्रू जाती है और हम आत्माएं फिर ऊपर अपने घर परम धाम में परमात्मा शिव बाबा के साथ उड़कर चले जाते हैं और फिर से हम अपने घर में पहुंच जाते हैं। ये है हमारी कहानी, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। इसीलिए जितना मैं आत्मा इस कहानी की स्मृति में रहती, उतना इस ड्रामा में मेरा कोई भी व्यर्थ संकल्प चल ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो सकता। The soul will always be happy and content. Om Shanti. Thank you, everyone. Thank you. Continue tomorrow. आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। Shanti. Anyone would like to share thoughts, please feel free.
Om Shanti. Thank you, Sarabhai. Very beautifully you have again revised everything, actually, our own story. Like it's like Adi, Madhya and Anta का ज्ञान. So बाबा तो मुरली में यही कहते हैं कि सब हम आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी. So एक सीन को त्रिकालदर्शी होकर देखेंगे तो हमें पास्ट का भी पता है कि हम सतयुगी देवी देवता थे और हम अभी संगम युग में हैं. So इससे हमें ड्रामा से डिटैच होने का we can detach ourselves very easily क्योंकि जो भी अब हो रहा है वो एक्यूरेट है. इसमें हमें क्यों क्या कैसे की प्रश्न नहीं होती है इस ज्ञान से जब हम आदि मध्य अंत के जानते हैं. और अनदर पॉइंट इज ये भी हम जानते हैं कि नथिंग इज न्यू क्योंकि हर कल्प हुआ है, अब हो रही है, फ्यूचर में भी होगा. सो हम सरप्राइज नहीं होते हैं कुछ भी हुए तो ये तो नथिंग न्यू, ये तो हुआ है पहले भी और फ्यूचर में भी होगा. ये पॉइंट से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें किसी भी आत्मा के प्रति जैसा भी कर रहा है उसमें क्यों क्या कैसे की प्रश्न नहीं उठती. उसी से हमें एक्चुअली दुख होता है, राइट. इसी से हमें अपने को बहुत इजीली दुख से मुक्त कर सकते हैं क्योंकि जो भी आत्मा जो कर रहे हैं वो एक्यूरेट है क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है और कल्याणकारी है. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और आपने अगेन हमारा जीवन की संपूर्ण 5000 साल की स्टोरी अगेन very clearly you have revised. Thank you so much, Sarabhai. Om Shanti. Thank you so much. Any other thoughts, inspirations? ओम शांति. बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाता है. रिवीजन से क्या पुरानी यादें आ जाती है बचपन की. जब कोर्स शुरुआत की थी तो ये सब सुनते थे. लैंग्वेज तो अलग थी, अभी थोड़ा ये मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज है. पहले रॉ लैंग्वेज में होता था. मतलब एक रिवीजन हो जाता है ड्रामा पर. ये कहना बहुत आसान है, नथिंग न्यू, एवरीथिंग इज बीइंग रिपीटेड. लेकिन हम लोग जो मतलब ग्रस्त में हो गए तो उसको मतलब धारण करना बहुत उतना आसान भी नहीं है. उसमें बहुत अपने मन को भी समझाना पड़ता है और जब दिल से काम लेते हैं तो जल्दी समझ जाता है. लेकिन
एक रिवीजन है, बहुत अच्छा है कि हम याद रखें कि ड्रामा पर निश्चय के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। जैसे आज की मुरली में भी जो वरदान में था कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के बारे में सोच के और अपना समय खराब करने से, अपने मन की स्थिति खराब करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जो बीत गया, नुकसान हो गया, वो तो हो गया, वो तो हम सोच के उसको रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, बल्कि उससे हम सीख लें कि आगे वो गलती दोबारा ना हो। तो वो तभी हो सकता है जब हमारा मन शांत होगा और हम कॉशियस रहें फ्यूचर में कि सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। जो हो गया, वो जो सजा मिलेगी वो तो भुगतनी पड़ेगी, उससे तो बच नहीं सकते। हाँ, अगर हमारी मन की स्थिति कंट्रोल्ड है तो वो सजा मिलेगी, लेकिन उसका अनुभव कम हो जाएगा। वो हमको, हमारे मन को, दिल को, दिमाग को उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगी अगर हम ड्रामा की ढाल को यूज करेंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर भाई, शांति, थैंक यू आपका बहुत बहुत, जो कि आप काफ़ी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, एंड दैट इज़ आई रियली अप्रिशिएट। आई होप एवरीवन एल्स आल्सो डज द सेम। बट मेरे को बहुत ही आई एम अ वेरी analytical या scientific kind of a person, right? So evidence चाहिए होता है। तो like when you start looking, evidence है, it's just that उस, वो कहते हैं ना कि सामने चीज पड़ी है पर उसको देखने के लिए आंखें भी वैसी चाहिए, तो आप वो हमें दे देते हैं। तो दैट इज सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। Science, it's actually sometimes I feel science जो भी बन रही है और इतनी अच्छे अच्छे जैसे साइंटिस्ट्स होकर गए हैं, कितनी सुंदर तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, and how it is linked with the spiritual truth that Baba is telling us. Most of us have that background in science, as students of science, we appreciate हर चीज का एक scientific explanation. या जो भी मुरली में होता है या कहीं और भी पढ़ते हैं जैसे चीज़ों में, जैसे आई टॉक अबाउट भगवद गीता लॉट, राइट, उनका सब एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली है। इट्स लाइक जैसे सिस्टर शिवानी कहती है ना कि पहले जैसे ज्योमेट्री की थ्योरम प्रूव करनी है तो वी अज्यूम समथिंग एंड देन वी से हैंस प्रूव्ड, करेक्ट। तो इसमें वही चीज़ है, किसी को अगर कोई सोचने भी लगे तो वो एज्यूम करेगी जो बाबा कह रहे हैं या जो मुरली कह रही है वो ठीक कह रही है, बट देन साइंस विल स्टिल प्रूव इट दैट वे, राइट। सो दैट्स द बिलीफ, belief in the belief in spirituality, but belief in which will ultimately be proven by science, right? मतलब वो साइंस ने प्रूव की हुई है बट हमें मालूम नहीं है, हमारा बिलीफ नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट Yes, right. Thank you.
Sure. Great. Any other final thoughts anyone would like to add? Sure. Then everyone have a good day and a good night with Baba. See you soon. Shanti. Thank you. Thank you, Saurabh Bhai. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Thank you, Saurabh. Have a good day and good night with Baba. Good night and good morning. Thank you. Thank you, Saurabh. Om Shanti. Good night. Om Shanti, Baba. Thank you. Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Good night and good day. Om Shanti. Thank you, Sarabhai. Thank you, family. Om Shanti. Thank you, Naresh Bhai. Om Shanti. Thank you, Sanjay Bhai. Om Shanti. Om Shanti.